Hi friends, welcome. How are you all? Fine? So, let us begin with the chapter called Microorganisms. ये ऑर्गेनिज्म से पहले ड्रॉ किया दिखा है आपको? यू से नो बिकॉज दिस इज बीइंग रिटन एकदम छोटा छोटा हैंड राइटिंग में विच इज नॉट विजिबल टू यू विथ नॉर्मल डिवाइसेस, लेकिन आप उसको बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आएंगे और बड़ा कुछ तो भी जूम वाला लेके आएंगे. यस, देन यू कैन से सर दैट वर्ड इज माइक्रो. So you'll say it is a microorganisms. So word itself is a suggestive of microorganisms are such a components, such a living organisms present onto the earth which cannot be seen by unaided eyes. यहाँ पे वर्ड में unaided जानबूझ के यूज किया है, purposely I had used that. So these microorganisms which are supposed to be the unaided structures, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि these microorganisms unaided में है, तो वहां पे just to see these microorganism we need microscope. क्या चाहिए हम लोगों को? माइक्रोस्कोप. एंड दिस माइक्रोस्कोप एंड उसका बड़ा भाई electron microscope, the discovery of these two units is the milestone in a field of biology. whether माइक्रोस्कोप से हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखना शुरू किए थे. Now biology का स्पेशल ब्रांच है that is called as a microbiology, where we study these all microorganisms. Now माइक्रोस्कोप में you must have seen microscope, you must have used microscope. The feature is there are two lenses. माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो यहाँ पे एक लेंस होता है, immediately you will get another lens, and here you just put an object that you wish to see. Proper light focus करने के बाद में here you can see the object. So this lens is known as object lens of a microscope, and this one is known as, this one is the object lens, this one is a eye lens, or this we called as an eyepiece. बहुत सारे बच्चे फनी वे में याद रखते, this is eyepiece to this is leg piece. Don't say like that. So here we say we have these two lenses. What will happen? The lens used have some magnification. Here when I use the word magnification refers to the power of that lens. In the sense, if I say eyepiece is of 10x, this means 1 centimeter object can be viewed as 10 centimeter. See here the power. Object lens, it may be 10, it may be 45, it may be 100. That is a magnification of this, so 100x. Suppose I am using first lens as a 10x and object lens also as a 10x, then what will be the magnification? तो this multiply by this, in the sense अगर object 1 centimeter का है तो first object में 1 centimeter will be 10 centimeter, and दूसरा object में 10 centimeter वाला into 10 will be 100 centimeter. Why I am just stressing on these issues? मे भी आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना जूम करने के बाद में हमें दिखता है. आज हम बोलते हैं वो सेल है, सेल के अंदर में बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग, बट ये सब समझना या सारा विजुअलाइजेशन हमें बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोस्कोप आया है. तो दिस बेसिक स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो माइक्रोस्कोप जहाँ पे भी है, क्यूरियोसिटी करके आप जो भी डॉक्टर के पास में जाते हैं उनका लेबोरेटरी होता है, वहाँ पे माइक्रोस्कोप है, स्कूल में माइक्रोस्कोप है. जस्ट एक दिन इंस्टेड ऑफ गोइंग
वो कुछ मॉल में वगैरह घूमने से अच्छा गो एंड विजिट अ लैब सो दैट यू कैन स्टडी दी माइक्रोस्कोप। थोड़ा सा अपने अंदर ये एटीट्यूड या रादर ये एक इंथुजियाज्म जनरेट होना चाहिए। तो जहां पे नाउ विल जस्ट से कि ये माइक्रोस्कोप है। नाउ दिस डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप हैज इन्वेंटेड कुछ छोटे छोटे नमूने दे आर प्रेजेंट ऑन टू द अर्थ, कुछ नमूने है। अभी ये सारे नमूने में सबसे पहला जो नमूना हम देखने वाले हैं, रादर वी आर गोइंग टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो 4 से 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी आर गोइंग टू स्टडी। विच ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? 4 से 5। तो जहां पे फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया। फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ हर एक का फीचर है। आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, दे आर नथिंग बट सेल्स। तो अ सेल कंसिस्ट ऑफ cell wall, a cell consists of nucleus, cell consists of cytoplasm. So we have a cell wall or a cell membrane, we have a cytoplasm, we have a nucleus, and important distinguishing cell organelle is chloroplast. Just try to remember this. या पक्का याद रखो, जो हरा भरा है वो भरा भरा है, कैसे? क्लोरोप्लास्ट। फनी वे में याद रखो, जो हरा भरा है वो कैसा है? भरा भरा है, कैसे? क्लोरोप्लास्ट। ऑलराइट, सो वी हैव दिस सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। डिस्टिंग्विशिंग फीचर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस। द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज व्हाट? बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया, नो डाउट, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो इनमें सब पहला पॉइंट आप फेंक सकते हैं। क्या फेंकेंगे? बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक। दूसरा हम देखने वाले अलगी, माइक्रोस्कोपिक। तीसरा हम देखने वाले प्रोटोजोअन्स, माइक्रोस्कोपिक। फंगाई, माइक्रोस्कोपिक। नाउ एक्सेप्शन कैसा है? अलगी एंड फंगाई माइक्रोस्कोपिक भी और जायंट भी है। यू कैन सी जायंट अलगी कुछ मीटर। आप ओशन में केल्प नाम का एक अलगी है, KELP, केल्प, वो जायंट अलगी बोलते हैं। सो बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टीज। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट जैसा पढ़ो। आप कोई भी एड टीवी पे देखते हैं, वो एड में यूएसपीज होते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। तो अपना बैक्टीरिया का यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है? तो बैक्टीरिया सबसे पहले दे आर प्रोकैरियोटिक। नो, प्रोकैरियोटिक मींस यहां पे इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियस होता नहीं है। सो प्रोकैरियोटिक, दे आर प्रोकैरियोटिक मतलब दे do not possess nucleus, या rather I can, in short I can write no nucleus, no nucleus. Alright, ये प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड। दूसरा, बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियास का फीचर इज दे हैव अ सेल वॉल, प्रोटेक्टिव सेल वॉल। चैप्टर का नाम हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो एंड फ्रेंड है। फो एंड फ्रेंड मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। मतलब हमारे लिए कुछ दोस्त अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत नालायक होते हैं। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल समटाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज अ डिजीज। हमें इतना पक्का पता है कि कुछ हमें डिजीजेस होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो दिस सेल वॉल याद रखो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेल वॉल होता है। इनका शेप देखा जाए, दे आर, सम बैक्टीरिया आर रॉड शेप, सम बैक्टीरिया आर राउंड, उनको हम लोग बोलते हैं कोकस। कुछ रॉड शेप इज बैसिलस, कोकस इज स्फेरिकल। ऑलराइट, सो वी गॉट अ कोकस, स्फेरिकल है, अलग अलग शेप है, रॉड शेप है। कुछ बैक्टीरिया यू विल गेट कॉमा शेप, इनको नाम है बैसिलस, स्फेरिकल, विब्रियो, ऐसे कुछ नाम है। बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, मीन्स दे डू नॉट, हेटेरोस मतलब डिफरेंट, ट्रॉपिक इज खाना बनाना, दे कुड नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि उनमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल लाइक क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ये वाला इनमें नहीं है।
मतलब आपकी लैंग्वेज में इनको हमेशा दूसरों से हॉटस्पॉट लेना पड़ता है, खुद कभी डेटा रिचार्ज करते नहीं है कि नहीं, याद रखने की बात। तो दे आर ऑलवेज हेटेरोट्रॉपिक। सो few features of bacteria: prokaryotic nature, no nucleus, no cell organelles, they have a unique cell wall, shape wise rod shaped, spherical as well as comma shape. They are heterotrophic in nature, in the sense they are dependent on food, yeah, they are dependent for food on other organisms. Example, बैक्टीरिया का एक पूरा यूनिट है, पूरा किंगडम है, उसमें से कॉमनली फेसिंग बैक्टीरिया जो है दैट इज ई कोलाई। विदाउट ई कोलाई वी कैन नॉट सर्वाइव। हर एक के अपने इंटेस्टाइन में ई कोलाई पक्का है। वी हैव मोर देन 50 बैक्टीरिया, 50 माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन। कुछ यूजफुल भी है, कुछ हार्मफुल भी है। सबसे अच्छा बैक्टीरिया कौन से पता है? जो आप रोज खाते हैं। क्या खाते हैं? बैसिलस। दही खाते हैं ना, दैट कंटेन्स बैसिलस। सो ई कोलाई, बैसिलस, सुडोमोनास, ऑलराइट, स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये आपको याद रखना है। अभी स्ट्रेप्टोकोकस बहुत सिंपल है। कोकस इज राउंड वाला, सारे राउंड वाले बैक्टीरिया एक चेन में आ जाएंगे, हो गए स्ट्रेप्टोकोकस। बायोलॉजी के 90% वर्ड हैज गॉट ए मीनिंग। उसको क्या करना है? आपको सिर्फ वो वर्ड को ब्रेक करना है। और जो 2-4 वर्ड को ब्रेक नहीं कर सकते ना, समझने को साइंटिस्ट का नाम है। ये बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। सो हियर वी से कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेल वॉल एंड द बेसिक फंक्शंस, बैक्टीरिया हो गया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाजू में। क्लोज योर आइज, ट्राई टू रिकॉल रिगार्डिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज प्रोटोजोअन्स। नेक्स्ट विल बी, सॉरी, विल हैव अल्गी नेक्स्ट, तो कंपैरिजन के लिए इजी हो जाएगा। अल्गी, अभी ये प्रोकैरियोटिक है, अल्गी थोड़ा डेवलप्ड है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा डेवलप्ड है, इसलिए यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक है मतलब कैरियन एक्चुअली इज अ न्यूक्लियस। कैरियोटिक इज अ न्यूक्लियस, प्रो प्रिमिटिव, यू डेवलप। सी, तोड़ दिया बायोलॉजी के वर्ड से। कैरियोटिक हियर न्यूक्लियस, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। किसमें? अल्गीज में। नाउ अल्गीज यूनिसेल्यूलर भी है, यूनिसेल्यूलर भी है, एंड अल्गी मल्टीसेल्यूलर भी है। अभी यूनिसेल्यूलर में स्पाइरोगायरा इज एन एग्जाम्पल। मल्टीसेल्यूलर में केल्प, मैंने जैसे बोला, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, चारा है, ये सारे क्या है? यूनिसेल्यूलर अल्गीज है। अभी अल्गी जब आप देखते हैं, स्पाइरोगायरा देखा रहेगा, चलो छोड़ दो यार, पानी में आपने नीचे कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का पार्ट देखा रहेगा, थोड़ा स्लीमी स्लीपरी होता है, बराबर है कि नहीं है? वो जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, दैट वी कॉल इट एज अ, या रादर इट इज एन स्पाइरोगायरल स्ट्रक्चर, इट इज एन अल्गी। अभी वो ग्रीन है मतलब कैसा है? हरा भरा है। हरा भरा मतलब भरा भरा, कैसे? यस, क्लोरोप्लास्ट से। सो दे हैव क्लोरोप्लास्ट, इसलिए दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, एंड एज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक। सो सिंपल, ऑलवेज गो फॉर कंपैरेटिव स्टडी, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब अगर पहला पक्का याद किया आप लोगों ने, तो दूसरा को पहले के साथ कंपेयर करो। नॉर्मली हम बोलते हैं ना, तेरे शर्ट से मेरा शर्ट सफेद है, क्यों? टाइड यूज करता हूँ, मतलब शर्ट भी है, सफेद भी है, मेरा ज्यादा सफेद है, कंपैरिजन हुआ ना, तो रीजन देने का क्या? टाइड यूज करता हूँ। आई एम नॉट मेकिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ टाइड, बट जस्ट रिमेंबर दिस। सेकेंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज क्या? अल्गी। बोलते जा मेरे साथ में, अल्गी कैसा ही है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब क्या प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियस एंड सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस नहीं है और सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। यूनिसेल्यूलर टू मल्टीसेल्यूलर, ये कैसे है? सिर्फ यूनिसेल्यूलर है। कौन? बैक्टीरियाज। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड हैव अ स्ट्रक्चर। नाउ जैसा यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे भी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल।
इसलिए अलगी को वी पुट इनटू अ प्लांट्स में सबसे लोअर प्लांट्स जो है ना उनको भी कॉल्ड एज व्हाट, अलगी. सो अलगी आर नथिंग बट द प्लांट्स. ऑलराइट, तीसरा ग्रुप में जाते हैं हम लोग. तीसरा ग्रुप जो थोड़ा हमारे लिए बहुत फायदे वाले नहीं, ये हमारे लिए फायदे वाला है. थर्ड ग्रुप इज प्रोटोजुआ. प्रोटोजुअन्स. सारे के सारे प्रोटोजुअन्स का एक फीचर होता है. प्रोटोजुआ और प्रोटोजुअन्स, चलो ये फॉर्मेट में देखेंगे तो ये यूकैरियोटिक्स है. अभी यूकैरियोटिक बोलेंगे तो यहां पे क्या रहेगा, देयर विल बी अ प्रेजेंस. क्या प्रेजेंट है? सो वी हैव अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज अ सेल वॉल. ऑलराइट, दे आर यूनिसेल्यूलर. बट यहां पे फीचर इज दैट एब्सेंट. क्या है? सेल वॉल. दे डू नॉट हैव सेल वॉल. तो उनका जो आउटर मेम्ब्रेन है, दैट आउटर मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव्स सम आउटग्रोथ्स. ये फ्लेक्सिबल है. ये आउटग्रोथ की वजह से दे आर मोटाइल स्ट्रक्चर. अभी यहां पे वर्ड यूज करेंगे मोटाइल. ये दोनों नॉन मोटाइल है. एक जगह से दूसरा जगह ये नहीं जा सकते, ये जा सकते हैं. सो दे आर मोटाइल स्ट्रक्चर. अभी ये बोलने से अच्छा मैं पहले आपको अगर एग्जांपल दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा. एग्जांपल ऑफ दिस इज अमीबा. आई लव टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ अमीबा. क्यों? बायोलॉजी का सबसे बढ़िया डायग्राम जो कभी भी गलत नहीं होता है. आप कैसे भी, यूकेजी का बच्चा भी अमीबा ड्रॉ करता है. देखिए आप, इतना सिंपल है ये. तो अमीबा क्यों? शेपलेस है. कैसा भी शेप ड्रॉ करो आएगा या आएगा. सो स्ट्रक्चर इज मोटाइल. सो वापस एक बार जाते हैं. प्रोटोजुअन से, यूकैरियोटिक से, सेल वॉल नहीं है. यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस रहेगा. न्यूक्लियस के बाद में क्या रहेगा? सेल वॉल प्रेजेंट. सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहेंगे. दूसरी बात, इनमें नो क्लोरोप्लास्ट. तो दे आर हेटेरोट्रॉपिक, दूसरों पे डिपेंडेंट है. जनरली ये प्रोटोजुअन्स एक्वाटिक, पानी में ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज उनको लिविंग फॉर्म में रहने के लिए वाटर का इसेंशियलिटी है. दूसरा, दे आर पैरासाइटिक. पैरासाइटिक इन द सेंस दे ग्रो इन आवर बॉडी. अमीबा है, हमें बहुत बार डिसेंट्री होती है. डिसेंट्री मतलब पता है ना आपको? हाँ, इनकमिंग से आउटगोइंग ज्यादा होता है. तो वो टाइम पे क्या रहेगा? इनकमिंग से आउटगोइंग ज्यादा जब रहेगा तो हम बोलेंगे अमीबाइड डिसेंट्री. इन द सेंस अमीबा की वजह से वी आर बीइंग सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज. तो हमारे लिए बहुत अच्छे है क्या? नहीं है. ऑलराइट, सो ये थर्ड ग्रुप हुआ हमारा. कौन सा है थर्ड ग्रुप? दैट इज प्रोटोजुअन्स. तो आई होप ये तीनों ग्रुप आपको समझ में आ रहेंगे. तो एक 2 मिनट का ब्रेक के लिए आप क्या कर सकते हैं? पॉज फॉर अ व्हाइल, try to recall this on your own, and then we'll go for the next. So here 3 ग्रुप के बाद में आगे के 2 ग्रुप we just wish to study. और ये 2 ग्रुप में फोर्थ वाला, फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज algae, third is protozoans. Fourth group we are going to study is fungi. थर्ड ग्रुप कौन सा है अपने पास में? फंगाई. आप लोगों ने फंगाई देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा तो मैं आपको एक जादू बताता हूँ. क्या करना है ना, एक डब्बे में ब्रेड लेना है. ब्रेड पता है ना आपको, पाव ब्रेड जो रहेगा. ब्रेड लेना है, डब्बे में डालना है. या कभी कभी अब होता है ऐसा कि स्कूल में गए आप, थर्सडे का दिन है, स्कूल में डब्बे में ब्रेड लेके गए. मम्मा भी अपनी बहुत इंथुजियास्टिक रहती है नए नए मेनूज करने के लिए, तो आपको ब्रेड देते हैं. तो आप वो जाएंगे बाई मिस्टेक या एनी हाउ यू जस्ट व्हाट वी कैन से फॉरगेट दैट टिफिन और देयर ओनली. ब्रेड वैसे के वैसे आपने खाए नहीं, कुछ नहीं. फ्राइडे वॉज हॉलीडे, सैटरडे वॉज हॉलीडे, संडे वॉज हॉलीडे. मंडे जब आप गए तो फॉर्चुनेटली यू गॉट दैट योर टिफिन एंड यू आर वेरी हैप्पी कि मेरा टिफिन है, मिल गया. तो द मोमेंट आपने टिफिन खोला यू आर सरप्राइज्ड. मम्मी ने तो उस दिन सिर्फ ब्रेड दिए थे, उसके ऊपर ये जाम कहाँ से आया? फ्रेंड्स, ये जाम नहीं है, वो ब्रेड जाम हुआ है. किससे? फंगस से. तो हम उसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड. मोरल ऑफ द स्टोरी, फंगस कैन ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस. दैट्स इट. क्लोज द डिस्कशन. नाउ
फंगस, टू टॉक अबाउट फंगस, यूकैरियोटिक है। अभी यूकैरियोटिक मतलब दे हैव न्यूक्लियस, they have cell organelles. See, by this comparative way you will be able to discuss this with your friends. या rather आपका एक बार फटाफट अभी होने वाला है, तो जैसे ही आपका हुआ कोई फ्रेंड आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता है क्या, उसको बोलना भैया बैठ, पूरा सिखा देने का उसको। जिस दिन आप दूसरे को सिखाएंगे आपको वापस से सीखने की जरूरत नहीं है। सो वी गॉट एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, देन दे हैव अ सेल वॉल। सेल वॉल इज अ फीचर of this fungi, or rather they are being recognized by this presence of a cell wall. Along with the cell wall, obviously आपने फंगाई देखा रहेगा, सबसे आलसी कौन है तो पूरी दुनिया में फंगाई। क्यों? खुद का खाना कभी भी खुद बनाएंगे नहीं, हमेशा दूसरों का पड़ा सड़ा जो भी है वो खाते रहेंगे। उनको टेस्ट वेस्ट का कुछ नहीं, जो पड़ा है जो सड़ा है जो जिसमें से स्मेल आ रहा है समझने का, फंगाई की उधर पार्टी चल रही है आराम से। सो दे आर हेटेरोट्रॉपिक। कौन? फंगाई। तो फंगाई इन जनरल आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। तीसरा, हेटेरोट्रॉपिक क्यों है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये यूनिसेल्युलर भी है, कुछ फंगाई आर यूनिसेल्युलर एंड कुछ फंगाई आर मल्टीसेल्युलर। थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। मल्टीसेल्युलर फंगाई कभी कभी आप खाते भी है, पता है आपको? यस, हाँ। कौन? मशरूम। तो अभी इसके बाद में कभी भी होटल में ऑर्डर करेंगे तो उनको बोलना है भैया मुझे वो फंगाई लेके आओ, डोंट वरी। सो यूनिसेल्युलर का एग्जांपल इज ईस्ट। आपके घर के फ्रिज में होता है। मम्मी बेकिंग पाउडर यूज करती है। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में फर्क है, बराबर है? मम्मी बेकिंग पाउडर हियर मतलब केक बनाने के लिए जो बेकर्स ईस्ट लेके आते हैं, दैट इज ईस्ट। ये यूनिसेल्युलर है, फंगल नेचर है। तो एज इट इज अ यूनिसेल्युलर एंड हैज गॉट अ फंगल नेचर, तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि ये फंगाई, कुछ फंगाई यूजफुल भी है, कुछ हार्मफुल भी है, बट मोस्ट ऑफ द फंगाई आर हार्मफुल। जहां पे भी रादर fungus, they what we can say facilitate the process of decomposition. तो in general they are known as scavengers of earth. कचरा उठाने वाले हैं कौन? फंगस। तो इन शॉर्ट फंगस के लिए यूकैरियोट मतलब डेवलप स्ट्रक्चर से प्रिडोमिनेटली हेटेरोट्रॉपिक और डिकम्पोजर्स, ये वर्ड फंगस के लिए पक्का याद रखो। दीज आर रिमेम्बरिंग। मैंने पहले बोला है कि अब 5 ग्रुप हम सीख रहे हैं। कौन से? बैक्टीरिया, अल्गी, प्रोटोजोअन्स, फंजाई एंड लास्टली और एक नमूना हम देखेंगे, बराबर है कि नहीं है? तो ये सारे के सारे जो है इनके यूएसपी एक एक वर्ड में आप याद रखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। एक बार ही याद रखना है, एक बार ही लिखना है, बट पक्का करना है। तो जैसा हमने मेथड पढ़ा था, कौन सा? रीड, राइट, रिवाइज एंड रिप्रोड्यूस। बाद में आपने रिकैप वर्ड यूज किया तो भी चलेगा, बट ये रीड करते टाइम पे आपके कंसेप्ट शुड भी एकदम पक्का, जैसा अभी हो रहा है। आई फील सो। इसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा नालायक वायरस हम देख रहे हैं, एंड आजकल दिन में 10 बार तो भी ये नाम सुनते रहेंगे आप लोग। सो वी हैव अ वायरस। पिकुलरिटी ऐसा है, वायरस आर नॉन लिविंग, नहीं वायरस आर लिविंग, नहीं वायरस आर नॉन लिविंग, नहीं वायरस आर लिविंग, नहीं। अरे ऐसा क्या हो रहा है? यस, वायरस ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। वायरस के लिए हम लोग बोलते हैं वायरस बॉर्डर लाइन पे है। वायरस इनसाइड होस्ट मस्त धिंगाना करेगा, जाएगा मस्ती करेगा। तो इनसाइड द होस्ट इट इज लिविंग, एंड इफ इट इज आउटसाइड होस्ट, घर से उसको धक्का देके हकाल दिया, नो होस्ट फॉर हिम, बस ये डेड है। अगेन व्हेन इट विल मूव इनटू द होस्ट, मस्त एक्टिवेट होगा। तो वायरस आउटसाइड द होस्ट,
डेड है, इनसाइड द होस्ट इट इज लिविंग. वायरस के लिए सिंपल, मोस्ट मेनी टाइम आई गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पेन ड्राइव. शायद आपके पास में भी पेन ड्राइव रहेगा. पेन ड्राइव इज यूजलेस. कब तक? जब तक वो ऐसे एज इट इज अपने पॉकेट में है. पेन ड्राइव में मस्त मूवी है एंड आई जस्ट वांट टू सी द मूवी, तो आई कैन नॉट सी द पेन ड्राइव ऐसे डाल के. देख सकते क्या आप? नहीं देख सकते. तो पेन ड्राइव को हमेशा मूवी देखने के लिए यू नीड अ होस्ट, एंड होस्ट इज कंप्यूटर, मे बी मोबाइल, मे बी टीवी. तो वो क्या हुआ? होस्ट हुआ. व्हेन दैट वायरस इज इन व्हाट वी कैन से इनटू द होस्ट, एक्टिव हुआ, मूवी शुरू, वायरस एक्टिव काम करना शुरू किया. हम लोग बोलेंगे कि जब तक वो आउटसाइड है इट इज डेड, बट द मोमेंट दैट वायरस एंटर्स इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कैसा रहेगा? एक्टिव होगा एंड इट विल वर्क. आज तक हमारे लिए यूजफुल वायरस ऐसा नहीं है. जितने भी है सबके सब हमारे लिए कैसे हैं? दुश्मन ही है. बराबर है. तो बड़े बड़े वायरस है. सबसे पहला इज टोबैको मोजाइक वायरस. टोबैको प्लांट पे दिखता है. ऑलराइट. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स नाम का डिजीज क्रिएट करता है. आजकल आप बहुत बार सुन रहे हैं. कोरोना वायरस क्या करता है? ये बहुत मजा आता है ना इसके साथ खेलने में. देन और बहुत सारे वायरस, इन्फ्लुएंजा है, H1N1 स्वाइन फ्लू वाला वायरस है. तो ऐसे n नंबर ऑफ वायरस जो आपके लिए कैसे है? हार्मफुल है. तो पांचों माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे नालायक कैटेगरी कोई है तो वायरस वाला है. तो ये हमारे पास में है. बराबर है. बाप है मतलब फादर है, लेकिन ये क्या है? हमारे लिए बहुत है, एकदम फालतू है. बराबर है नहीं है? मतलब बैक्टीरिया, अलगी, ये क्या हो गया? प्रोटोजुअन्स. फालतू कौन है? तो वायरस है. मतलब फंगाई के बाद में वायरस है. कुछ मेथड्स आपको याद रखने के लिए तैयार करने पड़ेंगे. बायोलॉजी में क्या होता है? नए नए वर्ड्स आते हैं, डिफिकल्ट है. तो व्हाट यू कैन डू? कैन मेक सम फनी थिंग्स टू रिमेम्बर इट. नाउ पॉज करके लिख लिया रहेगा. नेक्स्ट हमारे पास में कि वेयर वी कैन फाउंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ मिलते हैं ये. बराबर है. अगर सीखना है तो सब कुछ सीखेंगे इनके बारे में. वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं. तो वायरस का अगर मैं बात करूंगा, कहाँ रहते हैं इन द सेंस व्हाट इज द हैबिटेट फॉर द वायरस. इनके लिए हैबिटेट क्या है? हैबिटेट वेरिड हैबिटेट है. व्हाई? some of the microorganisms, not virus, all the microorganisms, varied habitat है. some microorganism आइस कोल्ड टेम्परेचर में, मीन्स आपको कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिलेंगे जो माइनस कुछ डिग्रीज में भी ग्रो करते हैं. ऑलराइट. फ्रिज में भी कभी कभी आपको फंगस ग्रो किया दिखता है, समझने का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. कुछ बैक्टीरिया आपको हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे, टेम्परेचर 70 डिग्री 78 डिग्री सल्फर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं. आपको पता रहेगा शायद से. मतलब आइस कोल्ड टू हॉट, दोनों भी टेम्परेचर में आपको मिलेंगे. तो ये टेम्परेचर वेरिएशन हो गया. दूसरा, आपको डेजर्ट में भी मिलेंगे एंड यू कैन फाइंड देम इन एक्वेटिक, पानी में भी मिलेंगे. मतलब वाटर के वेरिएशंस आपको आ गए. सी एकदम नटशेल में यू शुड बी एबल टू रिमेंबर. देन देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको इनसाइड द बॉडी ऑल्सो विल गेट, एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू विल गेट आउटसाइड बॉडी. बॉडी के अंदर भी मिलेंगे और बाहर भी है. मतलब होस्ट के इनसाइड, होस्ट के आउटसाइड. देयर आर सम बैक्टीरियाज विच आर पैरासाइटिक इन द सेंस द वन विच ग्रो ऑन अदर. कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं इनसाइड द बॉडी, कुछ बाहर भी होते हैं आउटसाइड द बॉडी. ऑलराइट. सो इनसाइड एंड आउटसाइड रहेंगे. There are certain microorganisms, for example bacteria, they are free living or some are parasites. अभी फ्री लिविंग में भी कोई कैसे रहते हैं? अकेले तपस्या करते हैं. ऑलराइट. मतलब अलोन दे कैन स्टे. तो बैक्टीरिया क्या रहेगा? अलोन, अकेला रहेगा. समटाइम दे आर बीइंग फाउंड इन मस्त गैंग में मिलेंगे, कॉलोनीज. So they are colonial. Alright, so they are
either free living में अकेले रहेंगे, maybe in a soil, maybe in a water, wherever it is, but अकेले, without any host, maybe alone, maybe sometime in the form of colonies. Alright, sometime parasites रहेंगे, parasite in the sense along with the host. उनके लिए क्या चाहिए? host maybe and living organism, maybe plant, maybe fungi. There is an association of fungi with plant, या कुछ bacteria और fungi दोनों associated है. तो यहाँ पे we have certain example. rather कुछ fungi plant के साथ associate होते हैं. There is an association of fungi with certain plants. Alright, तो उनके लिए there is a term known as mycorrhiza और mycorrhiza. तो आपको शायद आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं याद रहा तो भी चलेगा, but try to recall this. So as far as habitat is concerned, there is a wide habitat being shown by all the microorganisms, right from bacteria to algae to protozoa to fungi to viruses. So in short we had studied all the details, मतलब सबका हमने आज बायोडाटा पक्का किया है. Alright, thank you, do well, but do not forget to share, comment, subscribe and like, because you will get next notifications.